So, students, starting from good morning, first of all, to each and everybody. Starting from page number 38, continuing. Last time we had seen that Yemi and all other servants were going, and Yemi she was grieving very much because she cared for the babies and she was worried about them. She in fact offered Hannah that if the baby cried, she can call her, as she was going to her home and Hannah knew where her home was. But Hannah had decided that whatever happens, she will not call Yummy even if the baby cried, and she will manage it. Now, moving forward, she made the breakfast and Sarah helped with the children. Neither of them spoke of the servants beyond the fact they were gone. But after Hannah had taken morning food to the prisoner, she came back to Sadhu and questioned, "Why is it we cannot see clearly what we ought to do?" She asked him. "Even the servants see more clearly than we do. Why are we different from other Japanese?" See, servants knew very well that harboring a prisoner of war is too dangerous, and uh, they may fall in trouble if it happens so. But still, Hannah and Sadov did not put their feet behind. They helped the prisoner. He in fact operated upon him, and now they were taking care so that he can gain some strength. Yeah, here you should remember that they both were had made up their mind, said that they would hand over the prisoner to the police authorities. Now Hannah was a little bit worried, and she questioned why we are different from the other Japanese, why we cannot see what servants can see, and Sadao did not answer. But a little later he went into the room where the prisoner was and said briskly, "Today," to the prisoner, "today you may get up on your feet. I want to stay up only 5 minutes at a time. Tomorrow you may try it twice as long. It would be well that you get back your strength as quickly as possible." So he went into this prisoner and told him that he should stand at least for 5 minutes, and tomorrow again he should stand for 10 minutes, and so that he gains the strength. He saw the flicker as soon as Sadao told these things to the prisoner of war. जैसे ही उसने ये बोला, उसके आंखों में एक भय आ गया. Flicker of terror on the young face that was still pale. "Okay," the boy murmured. Eventually, he was determined to say more. "I feel I ought to thank you, doctor, for having saved my life." And okay, he told, and something he wanted to tell more thing, and he told to Dr. Sadao that I am very thankful to you because you saved my life. At this, Sadao said, "Don't thank me too early," Sadao said coldly. He saw the flicker of terror again in the boy's eyes. Terror as unmistakably as an animal. जैसे हम लोग खरगोश को देखते हैं, चूहे, रैट्स आइज, ये एकदम डरे डरे से होते हैं, वैसे ही आंखें उसकी भी थी, एकदम डरी सी. The scar on his neck were crimson for a moment. जो उसके नेक पे, जो कान के पीछे जो एक निशान था किसी चोट का, वो एकदम से रेडिश हो गया. Those scars
What are they? Sadhu did not ask. Sadhu ने पूछा नहीं, देखा बस मगर पूछा नहीं. And in the afternoon, the second thing happened. और आफ्टरनून में क्या हुआ? Hannah, working hard on an unaccustomed labor, saw a messenger come to the door in official uniform. Her hands were weak and she could not draw her breath. The servants must have told already. She ran to Sadhu, gasping, unable to utter a word. But by then the messenger had simply followed her through the garden and there he stood. She pointed at him helplessly. आफ्टरनून में क्या हुआ कि वो काम कर रही थी. एक्चुअली शी डिड नॉट हैव द हैबिट ऑफ वर्किंग टू हार्ड because for like cook was there, gardener was there, and to look after the kids, in fact this and yummy was there, so she was little bit feeling weak. At that moment she saw one person in official uniform and her hands एकदम से ठंडे पड़ गए और उसको ये लगा कि सर्वेंट्स ने शायद जाके बता दिया है कि इनके यहाँ पे एक अमेरिकन है. एंड और वो भागते हुए सड़ाऊ के पास जा रही थी. मगर जब तक ये सड़ाऊ के पास पहुंची तब तक वो भी जो मैसेंजर था वो भी सड़ाऊ के वहाँ तक पहुंच गया. सड़ाऊ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक. वो अपने बुक पढ़ रहा था और ऐसे ऊपर की तरफ देखा. He was in his office. The other portion, which was thrown open to the garden of the southern sunshine. What is it? He asked the messenger. And then he rose, seeing the man's uniform. और फिर उसने देखा क्या है. एंड जब मैसेंजर की यूनिफॉर्म देखी तो खड़ा हुआ एंड बोला कि क्या है. You are to come to the palace, the man said. The old general is in pain again. और एकदम जैसे ये सुना हैना ने एक लंबी सांस ली. Oh, is that all? All? The messenger exclaimed. मैसेंजर को तो पता नहीं था कि क्या है. But is it not enough? Indeed it is, she replied. I am very sorry. When Sadhu came to say goodbye, she was in the kitchen, but doing nothing. The children were asleep, and she sat merely resting for a moment, more exhausted from her fright than from work. और जब सड़ाऊ जा रहा था तब वो हैना को गुड बाय कहना आया और उस समय हैना बस ऐसे ही रेस्ट कर रही थी टेबल पे. बिकॉज द चिल्ड्रंस हैड फॉलन asleep and she was more exhausted from the fright. यानी डर से वो ज़्यादा एकदम से उसकी हालत ख़राब थी. Now moving to the next page number 1340. I thought they had come to arrest you, she said. He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake, he said in distress. Somehow I must get rid of him. और जैसे उसने कहा, हैना टोल्ड दैट उसको लगा कि वो शायद तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं. तब उसने उसकी आंखों में देखा जो डर था और इसके अलावा उसने उसको कहा कि हाँ मैं तुम्हारे लिए इस आदमी से तो छुटकारा चाहिए. बिकॉज समहाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम. बिकॉज तभी वो लोग सेफ होंगे. अगर ये यहाँ रहेगा तब तक उनको शांति नहीं है. नाउ सड़ाऊ वेंट टू जनरल. अब वहाँ क्या होता है देखते हैं. ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली. आई अंडरस्टैंड फुल्ली बट दैट इज बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन सो फ्यू Japanese have. I care nothing for the man, Excellency, Sadhu said, but having operated on him with such success. और फिर
जनरल को सडाउ ने जनरल को सब कुछ बता दिया था और जनरल भी कुछ समझ रहा था कि हाँ ठीक है, कि हाँ तुम्हारा कहना सही है। और सडाउ पुट फॉरवर्ड दैट ही डज नॉट केयर एनीथिंग फॉर दैट, बट सिंस ही हैव ऑपरेटेड ऑन हिम विथ सच सक्सेस, yes, yes, the general said, it only makes me feel you are more indispensable to me. Eventually, you can save anyone. You are so skilled. और जैसे ही डॉक्टर सडाव ने कहा कि एक्चुअली मैंने उस पर ऑपरेट किया इसलिए थोड़ा सा है, बाकी और कुछ नहीं, मैं आई डोंट केयर फॉर हिम। तब जनरल ने लगा हाँ यही तो कला है, इसी वजह से यू आर मोर इनडिस्पेंसेबल, यानी मेरे से अलग नहीं कर सकता तुमको। इवेंटुअली यू कैन सेव एनी वन, यू आर सो स्किल्ड, यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे। एक्चुअली डॉक्टर सडाउ ने जनरल को डायग्नोस किया था और उन्होंने ये नतीजा निकाला कि हाँ आपको अगर एक और अटैक आएगा ऐसा तो आप बच जाएंगे, मगर और आता है तो शायद मुश्किल होगी। तो डॉक्टर सडाउ जैसे जनरल ने ये पूछा, यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर अटैक एज आई हैव हैड टुडे, नॉट मोर देन वन, देन सर्टनली। और जैसे डॉक्टर सडाउ ने कहा कि नहीं एक से ज़्यादा अटैक आया तो शायद मुश्किल है बचना, देन सर्टनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, बिकॉज डॉक्टर जनरल को डॉक्टर सडाउ पे ही भरोसा था, एंड फॉर दैट रीज़न ही वुड नॉट हैपन एनीथिंग टू डॉक्टर सडाउ। इफ डॉक्टर सडाउ इज लाइक, सोचो इफ़ ही इज़ सेंटेंस टू जेल और फिर इधर अटैक आ जाता है तो उसको लाना मुश्किल होगा, एंड द जनरल में आल्सो डाई। इसलिए यहाँ पे वो जनरल, then certainly I cannot allow nothing, I can allow nothing to happen to you, the general said with anxiety. His long pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. और फिर जनरल कुछ सोचने लगे। You cannot be arrested, the general said, closing his eyes. Suppose you were condemned to death and the next day I have an attack, I have my operation. और तब वो जनरल कहता है, सोच लो अगर तुम्हें अरेस्ट कर लिया एंड द कोर्ट ऑफ लॉ गिव्स यू अ डेथ पेनल्टी, देन व्हाट विल हैपन, एंड जनरल गेट्स एन अटैक, देन ही विल आल्सो डाई। देयर आर अदर सर्जन्स एक्सेलेंसी। डॉक्टर सडाउ कहते हैं कि दूसरे भी सर्जन हैं एक्सेलेंसी। नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड, the best ones have been trained by Germans and would consider the operation successful even if I died. I don't care for their point of view, he signed. It seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with the American sentimentality. Then you could turn your prisoners over to execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. See, there is this thing that Americans are little bit sentimental and German doctors are ruthless, and this thing is the thinking of this general, and he says that they cannot even they are not able to even combine these two. See, if a doctor is a ruthless and plus sentimental, then it is a benefit. Like general, if that prisoner of war had come and if the doctor was ruthless, he would have easily sent the injured person to handed over him to the police, but due to sentimentality of Dr. Sadov and Hannah, they operated him, saved him, and this is the what I could be sure you would not murder. The general laughed.
He had an unusual sense of humor. He was just joking with that Sadao. As a Japanese, could you not combine these two foreign elements? Sadao smiled. I am quite sure, yeah, but for your sake, I would be willing to try. बोला कि एक्चुअली ये दोनों कंबाइन नहीं हो सकते, डॉक्टर सडाव कहते हैं, बट फॉर योर सेक आई विल ट्राई. द जनरल शॉक इज एंड आई हैड रेदर नॉट बी द टेस्ट केस, he said. He felt suddenly weak and overwhelmed, and with the cares of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibility हो रहा, और जनरल को थोड़ा सा वीकनेस भी फील हो रहा. एंड देन एक्चुअली हर विक्ट्री के साथ जनरल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही थी, एंड ब्रॉट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल ओवर. एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज 41, द साउथ पैसिफिक. It will be unfortunate that this man must have washed into your doorstep, he said irritably. I feel it is it myself. सड़ाव भी कह रहे कि पता नहीं क्यों ये आदमी मेरे ही घर के सामने बह के आया. It was an unfortunate incident. It would be best if he could be quietly killed. तभी जनरल ने कहा, तो सबसे बेस्ट होगा कि इसको चुपचाप से मार देते हैं. नॉट बाय यू बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम. आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स. सी नाउ द जनरल इज टेलिंग कि तुम नहीं मारोगे, बल्कि ऐसे लोग मारेंगे जो उसको जानते नहीं है. एंड beside this, the general have private assassins. Suppose I send two of them to your house tonight, or better, any night. You need not know nothing about it. It is now warm. What would be more natural than that you should leave the outer portion of the white man's room open to the garden while he sleeps. अब वो जनरल आइडिया दे रहे हैं कि जब ये एक्चुअली जो अभी वार्मनेस है उसकी वजह से तुम जो पेशेंट है उसका जो गार्डन साइड वाला जो गेट है उसको ओपन रखना. दो असैसिन्स मे बी टू नाइट अदर डे कभी भी आ जाएंगे, तुम्हें बताना नहीं है, एंड दे विल कम एंड उसको मार देंगे चुपचाप से. सर्टनली इट वुड बी वेरी नेचुरल. इन फैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट. तब डॉक्टर सड़ाव कहते हैं हाँ ये तो बहुत ही बढ़िया है, क्या एक्चुअली में तो हमारा जो वो गेट है वो खुला ही रहता है. एंड सो गुड, द जनरल सेड yawning. They are very capable assassins. They may make no noise and they know the trick of inward bleeding. If you like, I can even have them remove the body. तब जनरल कहते हैं कि ये बहुत जो असैसिन्स यानी जो पैसे के लिए किसी को मार देते हैं, तो ये जो असैसिन्स है ये इतने काबिल हैं कि दे आर वेरी कैपेबल. दे मेक नो नॉइज, कोई आवाज़ भी नहीं करते, चुपचाप से आते हैं, और इनफैक्ट दे हैव द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, यानी कोई ऐसे नस पे वार करते हैं कि अंदर ही अंदर आप आदमी का ब्लीडिंग होती है, बाहर कुछ नहीं दिखता है. और अगर तुम चाहते हो, सड़ाव को कह रहे हैं, अगर तुम चाहते हो तो उसकी जो बॉडी है वो बॉडी भी वहाँ से हटा देंगे. सड़ाव कंसिडर दैट्स परहैप्स वुड बी द बेस्ट एक्सेलेंसी. ही एग्रीड, थिंकिंग ऑफ हैना. ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम, थिंकिंग ओवर द प्लान. In this way, the whole thing would be taken out of his hand. He would tell Hannah nothing, since she would be timid at the idea of assassins in the house. Yet certainly, such persons were essential in an absolute state such as Japan was. How else would ruler deal with those who opposed them? और फिर वो जनरल के वहाँ से हट गया
और घर जा रहा था। एंड थिंकिंग ऑन हिज वे टू होल थिंग वुड, इस तरीके से ये पूरा जो वाक्य है कि एक प्रिजनर ऑफ वॉर बह के आया, उनके घर पे है, अब वो भी ट्रबल में है, ये सब ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो लोग असैसिन्स आएंगे, इसको मारेंगे और उसकी बॉडी को भी ले जाएंगे, तो ना कोई आया ना कोई गया। एंड ही वुड टेल, और इसके अलावा उसने ये भी डिसाइड कर लिया कि हैना को कुछ नहीं बताएगा, बिकॉज हैना तो वैसे ही डरती है, और फिर इसके अलावा अगर उसे ये पता चल गया कि एसेसिन्स उनके घर पे आएंगे तो वो और ज़्यादा डर जाएगी। एंड तब उसको ये भी लगा कि हाँ, ऐसे लोग भी होने चाहिए एसेसिन, क्योंकि कई लोग होते हैं जो सरकार का विरोध करते हैं, ऐसे जनरल्स का विरोध करते हैं, और उनको हैंडल करने के लिए ऐसे भी हाउ एल्स वुड रूलर डील विद दोज हु अपोज देम। ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग बट रीजन्स टू बी द एटमोसफियर ऑफ हिज माइंड। और फिर उसने कुछ नहीं सोचा, बस सीधे घर चला गया। ऑफ हिज माइंड एज ही वेंट इन टू द रूम वेयर द अमेरिकन वॉज इन बेड, और फिर वो अमेरिकन के पास गया। बट एज ही ओपन द डोर टू हिज सरप्राइज द यंग मैन वॉज आउट ऑफ बेड एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन। और जैसे ही उसने रूम खोला तो देखा वो यंग मैन जो है अमेरिकन, वो बिस्तर पे, यंग मैन वॉज आउट ऑफ बेड एंड प्रिपेयरिंग, वो जा रहा था गार्डन में घूमने। और जैसे उसने ये देखा एकदम से चिल्लाया, व्हाट इज़ दिस, हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम। बोला, किसने तुम्हें परमिशन दी। तब वो जो पर्सन था, टॉम, आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, गॉश आई फील प्रिटी गुड अगेन, बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ। और जैसे उस डॉक्टर सडाउ ने उसको डांटा, हु गेव यू द परमिशन टू, वो कहता है कि मेरे को परमिशन लेने की मेरे को आदत नहीं है। एंड गॉड, उसके साथ ही वो ये भी कहता है कि मेरे ये जो साइड का है ये मैं तो काफ़ी ठीक है, फ़र्क तो हो गया, बट स्टिल देयर इज द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ। बोलते थोड़ा सा स्टिफनेस है मसल्स में। इट इज़ सो, सडाउ इंक्वायर सरप्राइज्ड। और अभी 1 मिनट पहले वो उसको डांट रहा था, मगर जैसे उसने ये बताया कि ये स्टिफनेस है, वो सब भूल गया और कहता है, ओ अच्छा, ऐसा कोई प्रॉब्लम है। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही मर्मर्ड। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट एंड गेज्ड एट द हीलिंग। और फिर उसके शर्ट को ऊपर करके वो जो जख्म है जो ठीक हो रहा है उसको देखने लग गया। स्कार मसाज में डू इट। और फिर कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा मसाज कर लेना, अगर एक्सरसाइज से नहीं होता है तो थोड़ी सी मसाज कर लेना और ये ठीक हो जाएगा। इट वुड नॉट बॉदर मी मच, द यंग मैन सेड। दिस यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर द स्टबली blonde beard. Say, doctor, I have got something I want to say to you. If I had not met a chap like you, well, I would not be alive today. I know that. फिर वो कहता है कि नहीं, ऐसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे को इस स्टिफनेस से, आई विल मैनेज इट, बट आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू डॉक्टर, कि अगर आप जैसा जापानीज़ मेरे को डॉक्टर नहीं मिलता तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। आई नो दैट। और सडाउ ने कुछ नहीं कहा, बस नीचे झुका, बट ही कुड नॉट स्पीक। श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली, हिज बिग थिन हैंड्स gripping a chair were white at the knuckles. I guess if all Japs were like you, there would not have been war. और फिर वो कह रहा है, साथ में उसमें ये भी कह रहा है, अगर आप जैसे ही सभी जापानीज हो जाए तो शायद लड़ाई ही नहीं हो। Perhaps Sadao said with difficulty, and now I think you had better go back to bed. और फिर सडाउ ने उसको कहा कि अब टाइम हो गया, तुम सो जाओ। He helped the boy
back into the bed and then bowed. "Good night," he said. और उस रात Sadhu slept badly that night. Time and time again he woke, thinking he heard the rustling of the footsteps, the sound of the twig broken, or a stone displaced in the garden, a noise such as a man might make who carried a burden. और फिर उस रात पूरी रात सड़व सो नहीं पाए। उनको लग रहा था कि उन्होंने कुछ फुटस्टेप्स सुने, कुछ ट्विग्स यानी लकड़ी छोटी मोटी कोई टूटी या कोई स्टोन गिर गया, ऐसा कुछ सुना ताकि उनको लग रहा था असैसिन्स आ गए हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम। इफ द अमेरिकन वर गॉन he then would simply tell Hannah, and so the general had directed. But when he opened the door, he saw at once that there on the pillow was a shaggy blonde head. He could hear the peaceful breathing of sleep, and he closed the door again quietly. और नेक्स्ट मॉर्निंग वो बहाना बना के हैना के पहले गए ताकि वो देखें अगर वो अमेरिकन वहाँ नहीं है तो वो हैना को सब कुछ बता देगा। बट जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला कि वो जनरल, वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर था, वहाँ पे आराम से सो रहा था। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ स्लीप। ही क्लोज द डोर एंड अगेन क्वाइटली। और हैना को आके कहता है, ही इज़ asleep. ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट। से नॉर्मली अगर हम अच्छे हैं, मतलब तंदुरुस्त हैं, तो अच्छी नींद भी आएगी। अगर हम बीमार हैं, कुछ है, तो हमें नींद में भी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे है ना, ये भी एक इंडिकेशन है कि वो चैन से सो रहा है, इसका मतलब अब सब रिकवर हो गया है। What shall we do with him? Hannah whispered her old refrain. Sadhu shook his hand. I must decide in a day or two. Hannah ने पूछा क्या करेंगे? सड़ाऊ कहता कि ये देखते हैं 1-2 दिन में। But he never disclosed that he had talked to the general and the general had told something. But certainly he thought the second night must be the night. There rose a wind that night, and he listened to the sound of the bending boughs and whistling partition. Hannah walked too, out. He nodded to go and close the sick man's partition. He asked, "No." और उस अगली रात को शायद उसको लगा कि अगली रात को असैसिन्स आएंगे, और मगर उस रात थोड़ी हवा भी चलने लग गई। तब हैना कहती कि जाके उसका जो पार्टीशन है, जो गार्डन के साइड जो गेट खुलता है, उसको बंद कर देते हैं। हैना वोक अप टू, आउट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैन पार्टीशन, नो ही इज़ एबल नाउ। तब जैसे हैना जाने वाले थे, उसने कहा नहीं, वो खुद कर सकते हैं। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर। और अगली सुबह भी अमेरिकन वहीं था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट। अब डॉक्टर सड़ाऊ को लग रहा था कि शायद आज की रात है वो, जब वो असैसिन्स आएंगे और इसको मारेंगे। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ साउंड ड्रिपिंग ऑफ ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स। सड़ाऊ स्लेप्ट ए लिटिल बेटर। अगली रात थोड़ी बारिश होगी तो मौसम ठंडा हो गया, एंड सड़ाऊ को भी थोड़ी नींद आ गई। और ये जो साउंड्स थे, ड्रिपिंग इवेंट्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स, जो पानी गिर रहा था वो सब। बट ही वोक इन द साउंड ऑफ ए क्रैश एंड लिव टू हिज फीट। अचानक आधी रात में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई और सड़ाऊ एकदम से उठ गया। What was that? Hannah cried. The baby woke at her voice and began to wail. I must go and see. Hannah भी एकदम से उठ गई एंड पूछ रही है कि क्या है, और उसकी आवाज़ सुन के जो बेबी है वो भी उठ गया और वो जाने लगी। I must go and see. But he held her
and would not let her move. सड़ाऊ, मगर सड़ाऊ ने उसको पकड़ लिया और हिलने भी नहीं दिया. सड़ाऊ, she cried, what is the matter with you? और तब वो कहती, सड़ाऊ क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? डोंट गो. बस सड़ाऊ कह रहा है मत जाओ. डोंट गो. His terror infected her and she stood breathless, waiting. There was only silence. Together they crept back into the bed and the baby between them. और फिर वो दोनों वहीं पे वापस सो गए और वो जो बच्चा था उन दोनों के बीच में सो गया. और अगले सुबह जब वापस सड़व गए, yet when he opened the door to the guest room in the morning, there was the young man. He was very gay, खुश था, and had already washed and was now on his feet. और अगले दिन सुबह फिर गए तो वो आदमी जो बच्चा है टॉम खुश था एंड वो खड़ा हुआ था. इनफैक्ट ही हैड इवन टेकन द बाथ. He had asked for a razor yesterday and had shaved himself, and today there was faint color in his cheek. और एक शाम पहले उसने रेज़र भी मांगा था और तो सुबह सुबह उठ के वो नहा भी तो लिया. And in fact he had shaved himself. I am well, he said joyously. Sadao drew his kimonos round his weary body. He could not, he decided suddenly, go through another night. It was not that he cared for this young man's life. So, no, simply it was not worth the strain. और उसने कुछ सोचा. He decided suddenly. गो थ्रू. वो कहता है कि नहीं नहीं, ये 3 रातों से वो परेशान है. असैसिन्स आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, पता नहीं कब आएंगे. एंड इट वॉज नॉट दैट ही केयर फॉर दिस यंग मैन. एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वो इस यंग मैन के लाइफ को बचाना चाहता है या इसका ध्यान रखना चाहता है, बट द स्ट्रेन, द टेंशन, जिस टेंशन से वो गुजर रहे हैं डॉक्टर सड़ाऊ, दैट इज़ नॉट सिंपली वर्थ टेकिंग. क्यों मगज मारी लें. एंड सो ही डिसाइडेड समथिंग. यू आर वेल, सड़ाऊ agreed. He lowered his lips. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. It is so near the coast that it has not been worth fortifying. फिर सड़ाऊ कहते हैं, You are well. He lowered his voice. फिर धीरे से कहता है, You are so well that I think if I put my boat on the shore. बोला कि मेरे जो बोट है, छोटी सी एक बोट है मेरे पास, अगर उसको मैं समुंदर के किनारे लगा दूँ, उसमें कुछ खाने पीने के सामान रख दूँ, क्लोथिंग रख दूँ, तो वो जो सामने जो टापू दिख रहे हैं थोड़ी सी दूर पे, वहाँ तक तुम आराम से जा सकते हो. और चप्पू यानी बोट चलाने का जो होता है चप्पू, उसकी मदद से तुम वहाँ तक जा सकते हो. और वो जो टापू हैं इतने पास हैं जापानीज कोस्ट के कि कभी उस पर ऐसा कोई रहा भी नहीं. फोर्टिफाइंग नहीं, यानी उसके रक्षा करने के लिए नहीं कि भाई कोई मिलिट्री स्टेशन बना दे, ऐसा कुछ नहीं. Nobody lives on it because in storm it is submerged. और ये जो टापू हैं ये एक्चुअली में जब तूफ़ान आता है, हाई टाइड आती है बहुत ज़्यादा, तब ये उसमें डूब जाते हैं. बट दिस इज़ नॉट द सीज़न ऑफ स्टॉर्म. मगर अभी कोई तूफ़ान नहीं आ रहा है, गर्मी का मौसम है. यू वुड लिव देयर until you saw a Korean fishing boat pass by. नहीं मिल जाए. कोरियन बोट जब वहाँ से निकले
तो तुम उसमें चले जाना, और वो आइलैंड के बहुत पास से निकलती है, बिकॉज वहाँ पे जो पानी है दैट इज़ डीप इनफ कि कोई एक बोट उसके आसपास से निकल के जा सकती है। सो यू कैन सी, तो आप डॉक्टर सड़ाऊ उसको कह रहे हैं यहाँ से भाग जाओ और वहाँ चले जाओ। द यंग द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, स्लोली कॉम्प्रिहेंडिंग टू आई हैव टू। अब वो जो लड़का है टॉम, वो कह रहा है कि क्या मेरे को ज़रूरी है ऐसा करना। आई थिंक सो, सड़ाऊ सेड जेंटली, यू अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर। तब डॉक्टर सड़ाऊ ने कहा कि तुम जानते हो कि कईयों को पता है कि तुम हमारे यहाँ पे हो, एंड तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे आज का एंड यहाँ पे करते हैं हम लोग कि दैट यंग मैन थोड़ा सा डरा हुआ है कि डॉक्टर सड़ाऊ ऐसा क्यों कह रहे हैं, बट स्टिल, एंड डॉक्टर सड़ाऊ चाह रहे थे कि वो वहाँ से उसको भगा दें। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि डॉक्टर सड़ाऊ उसको कैसे भगाते हैं और वो कैसे वहाँ से एस्केप हो पाता है या नहीं हो पाता है। ओके, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू शुड गो थ्रू ईच एंड एवरी वीडियो वेरी केयरफुली। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।